लेकिन देखो ना इसमें कोई बात बाकी अच्छा 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 चलो चलो तुम्हें व्हाट्सएप करो कोई अगर नंबर मैं उसमें सो गया वो काम फोन करता था नंबर जो है ना कि अगर उसमें सेव तो व्हाट्सएप Thank you for joining us today. So we will start the session with Lavate Quran Park. Then the management will give presentation to all the stakeholders of the company on company's performance and the key developments. Following the presentation, we will have a question and answer session to address your queries. So I would request Mr. Zahid Ali Rajput to come forward for Lavate Quran Park. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Now I will request management to give the presentation. Assalamu alaikum everyone. Alaikum assalam. So, as you know, PIBT is a dry bulk cargo terminal and built to handle coke, liquor, and cement. And it's a 30-year plus extendable 30-year concession at Port Qasim. And we are a common user terminal. The concept behind PIBT is that the whole pollution of coal that was happening at Karachi Port in the handling of coal for 10 years ago, that should be stopped and the coal should be shipped to Port Qasim, which is 1 hour away from Karachi. Total investment in the project was $305 million, with IFC, which is the arm of the World Bank, participated as investors and financiers in the project. 50% of PIBT is listed on the stock exchange, and 25% of our revenues goes to the Port Qasim Authority in terms of royalty payments. We work at the best international standards of productivity. We're fully compliant with the regulations and laws of CEPA and World Bank environmental standards. We are listed, we listed 2013, I think, on stock exchange. Our shareholding breakdown is in front of everyone. So our location is, we are the first terminal in the channel, Port Qasim channel. And if you see the red line, so that is our location. Our jetty is the first in the channel. And then our jetty connects 2.5 kilometers into our storage area. And that's where we store the coal. So last financial year was tough for us because the imported coal via sea contracted, and that hurt our volumes and our revenues and our profitability. The volume handled last year was 4.7 million tons, 25% downwards than the previous year. Revenue was about 9.9 billion or 10 billion rupees. EBITDA was 2.7 billion rupees. Net loss was 250 million rupees. But in spite of that, our contribution to the national exchequer was 6.1
1 billion, which is the royalty as well as the tax. We also had a very bad fire incident last November that caused the terminal closure for a few weeks. But in spite of that, we recovered quickly in 3 to 4 weeks. But during the downtime, we still handled the vessel manually without our cranes. And Port Qasim allowed us to shift our vessel, contracted vessel, to marginal wharf Port Qasim so that the operations never stopped. The yearly comparison is in front of you. We handled these 4.7 billion tons, 87 vessels in the last financial year. Before that, we were at 6.4 million tons, and then we peaked in 2021 at 10 million tons. So we built capacity to handle 12 million tons of coal. Alhamdulillah, we tested 10 million tons per annum. And last financial year was it's fairly tough, but we will show you the result, the quarterly results of this financial year. Quarterly volumes comparison आपके सामने है, उसमें देख लें. Breakup of our clients. So the biggest client are the cement factories who import coal for their own cement factories. And then power plants, 21% of the volume that we handled last financial year were power plants, 47% were cement, and then chemical, textile, and other. Revenue fell from about 14 billion to about 10 billion last year, and marginal profit in that, but nothing to talk about. So last quarter, we've seen the economy ramp up, and we've seen our volumes go up, which is seaborne coal imports. And we've seen that we've done, alhamdulillah, 800,000 tons in just July, and then you see the volumes in August and September. Total Hamari quarter volumes were 1.8 million tons in the first quarter of 2026, whereas we handled 4.6 million tons in the last financial year. So we've seen a very, very healthy recovery in our coal volumes. And we hope that, inshallah, this strength in the coal import market continues with the revived economic activity and Pakistan's better macroeconomic condition, where the government is allowing imports and there is enough foreign exchange with the government. So revenue for first quarter 2026, alhamdulillah, is 3.9 billion rupees. And the net profit is 683 million rupees in 3 months. And that is, alhamdulillah, very, very healthy recovery for us. And we are very happy with the volumes, and we are managing all the surge in volumes, trying to manage it with the best productivity and safety standards. The one thing that is a big development that we would like to share with our shareholders, our investors, is the opportunity which we feel is life-changing opportunity for Pakistan as well as PIBT, which is that PIBT has been selected by Rikudik Project, Alhamdulillah, to be the terminal for exporting their copper and gold concentrate. And they looked at 6 port terminals in Pakistan. They selected PIBT because we have a built up infrastructure with trains, conveyor belts, and the storage area. And we have negotiated with them, and we are negotiating with the government to, inshallah ta'ala, sign the ability to handle their copper and gold concentrate from
from PIPT when they start operations. And they expect to start operations in 2028, maybe 2029. So that is, inshallah ta'ala, going to be a game changer for us because our export line will be, inshallah, utilized properly at that time. This is a layout of what we expect. We are in talks with Liquidate Project, and they plan to invest about $150 million in PIPT infrastructure. They will do it themselves within our terminal, and this blue structure you see is what their proposed plans are. And we have given them area inside the terminal, and they will build a shed to house their cargo and to have their own operations for all getting their concentrate all the way from Balochistan all the way here safely, and then connecting it to our conveyor belt, our export conveyor belt, all the way to our jetty. And as of now, alhamdulillah, no terminal in Pakistan can provide these capabilities. So they have selected PIPT, and aapki duaein bhi chahiye, inshallah, that we see the completion of this project. We see that this project is good for Pakistan, good for the people of Balochistan, for us, and inshallah ta'ala, isme $2 billion a year of copper and gold concentrate is going to be exported, and we hope to capture all of that quantity in PIPT and inshallah see the upside. जी कई साल हो गए सुन के थक गए। नहीं सर, ये तो पहली बार बताया। 147 आपके शेयर्स की वैल्यू गिरती भी जा रही है। आप लोग किधर एवरेज करते जा रहे हैं, ना बोनस है ना डिविडेंड है। आप आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं सर। आप क्वेश्चन आंसर पे आप पूरा कर रहे हैं सर। हमने एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत फोकस किया है। वी planted mangroves over 500 hectares in Port Qasim. हम maintain भी करते हैं, nursery भी maintain करते हैं, and we partnered with IUCN to plant trees, mangroves in the coastline as well. So ये हम regular करते रहते हैं. We sponsor government schools, 2 schools in Ready Goat and one in Cattle Colony, and ये CSR करते हैं, थोड़ा सा हेल्थ केयर भी करते थे और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं विद द सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। कब तक चांस है कि जी बताइएगा सर, कब तक आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी? सर कुछ शेयर्स की वैल्यू तो मैं नहीं कह सकता। 147 से कंटिन्यू नीचे जा रहे हैं आप लोग। सर एक अच्छा शेयर मुझे पता भी नहीं, मैं देखता भी नहीं, लेकिन ये बताइए हो सकता है सर ऐसा ₹4 से कितना हो गया? 16 हो गया सर, लेकिन 4 से आप इसको रिलेट ना करें, ये 100 रुपए हुआ। सर जब ₹147 का शेयर था, उसके साथ आपको 1400% का राइट भी मिला, और ये हो गया सन 2011-12 की बात, 13 अगर वही पेमेंट हमने लगाया होता तो कहाँ पहुंच चुके होते? गोल्ड में लगा देखिए, वो तो आपकी जिम्मेदारी, आपकी जो बिजनेस डिसीजन है, देखिए आपका बिजनेस डिसीजन है, आपकी इन्वेस्टिंग डिसीजन है, उसके ऊपर आप मुझसे पूछ के तो रोटी और खाना नहीं खाते ना, वो तो आप अपने हिसाब से करते हैं। आपकी मर्जी है कि आपने कहाँ पे कंपनी का ताल्लुक है। 147 रुपए पे जो शेयर गया था 2013 के अंदर, उस वक्त 1400% का राइट मिला था, और जिस वक्त शेयर उस पर लोगों को मिले थे वो PICT के शेयर थे, 545 मिलियन के शेयर थे जो आप लोगों को मिले थे फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर आपको 1400% का राइट मिला था। तो जिस शख्स ने उस वक्त 10 रुपए को भरा था, उस 147 रुपए के बाद कंपनी के शेयर बहुत अरसे तक 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए पे ट्रेड होते थे। तो अगर आप हमसे कंपनी के अलावा ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे, हमारा मौजूद नहीं है, बट वी कैन डिस्कस विद यू कि यू कुड हैव गॉन आउट ऑफ योर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, आप अपना सौदा काट सकते थे, बट वो हमारा इस वक्त मौजूद बहस नहीं है कि आपने 147 पे क्यों लिया, आपने 40 पे क्यों नहीं बेचा, आपने उस राइट को भरा नहीं बेचा, आपने राइट को आगे कर दिया, बिकॉज हम इस वक्त बैठे हुए हैं कि कंपनी में आज क्या कर,
और पिछले 12 साल से हम कंपनी की एक चीज के बारे में मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बयान कर रहा हूं। क्या हमने कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके सवाल हो वो आपको मुकम्मल बताएं। कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स जिस तरीके से आ रहे हैं, कोयला है, अब आप मुझे बताइए कि क्या अगर मुल्क में कोयले की जरूरत नहीं होगी तो कोयला इंपोर्ट होगा? रेट बहुत बढ़ गया था उसका। रेट बढ़ जाए या जो रेट बढ़ गया, एलसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गई, मार्केट आपकी गिर गई, आपके पास इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा बिजनेस है जो काम करे। सर मैं इसमें ऐड कर दूं, नेपरा में वो पावर प्लांट का चल रहा है, एक साल की इन्वेंट्री पड़ी थी क्योंकि वो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे इस रेट पे, तो और कैसे मंगाते। अब आपको खुद ये इल्म है, तो इसलिए जो हम बात कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े। हमने जिस वक्त 10 मिलियन टन भी कार्गो किया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पीआईबीटी या कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर जरूर उसका बयानिया क्या बयानिया ये होता है कि आप हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अपने लोन्स लेते हैं, उनको आप रीपे करते हैं, और जब आपने लोन्स को और इन सारी चीजों को रीपे करते हैं तो एक डिविडेंड स्ट्रीम आता है। दिस इज ट्रू टू एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोगों की इल्म में पहले दिन से ये है, जब हमने 2012 में अपना फाइनेंशियल क्लोज किया और उसके बाद 2017 में हमने कमर्शियल ऑपरेशन उस वक्त भी अकाउंट्स के अंदर ये लिखा कि हमारे पास 12 साल के लोन है, और 12 साल के लोन्स के अंदर हमने आपको बताया था कि $125 मिलियन के टोटल लोन थे उस टाइम पे, जिसमें से $55 मिलियन फॉरेन करेंसी का लोन था जो कि हमने उस वक्त के हिसाब से 100 रुपए पे लिया, और हमारे पास 72 मिलियन के लोकल लोन। और ये चीज आपको पहले दिन से बताती कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए, कंपनी में ये 12 साल के लोन है, 12 साल के लोन जो है इस साल से पे ऑफ है। हमने जब आपको 8 मिलियन टन पे थे, 10 मिलियन टन पे थे, बताते रहे चीजें बहुत बेहतर चल रही, बट देर आर कमिटमेंट्स, वो कमिटमेंट्स कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल कर रही है। आपको इस बारे में खुश होना चाहिए कि कंपनी ने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी ऐसा मुकम्मल किया है फ्रॉम द लेंडर्स। ठीक है, हमारे ताल्लुकात रेगुलेटर्स बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हैं, हम फर्दर बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो इन चीजों को भी आप जरा देखें कि क्या कुछ आइन चीजें हो रही हैं। जो टफ टाइम था वो निकलता जा रहा है। हमारे जो फॉरेन लोन्स हैं वो इंशाल्लाह 2 इंस्टॉलमेंट्स रह गई हैं, वो हमारे पे ऑफ हो जाएंगी। लोकल लोन्स के अंदर भी हमारे पास 2 साल रह गए, वो भी टाइम के ऊपर पे हो रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपनी के पास क्या है। मतलब मैं आज खड़ा होके सिर्फ आपकी कंपनी के ऊपर तो बोनस इशू नहीं कर सकता, आपकी कंपनी के ऊपर राइट इशू नहीं कर सकते, आपको डिविडेंड नहीं इशू कर सकता, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां हैं जो कि आपकी कंपनी के फुलफिल करनी है। तो ये एक बॉटम लाइन है। बाकी आप सवाल उनसे पूछें कि क्या हुआ, कैसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, रिप्लेस कर रहा हूँ ना, तो उनकी चीजें जा रही है। से हम वीकली देंगे और इनवाइस भी दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात है। हमसे तो और क्या ऐसा तो नहीं जैसे केआईसीटी के साथ हुआ था, ऐसा तो नहीं हुआ हमारे साथ? हो तो देखिए, कंसेशन जो है ना 30 इयर्स का है। वी एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह 2045 2046 तक कंसेशन है, एंड देन रिन्यूएबल है फॉर अनदर 30 इयर्स अगर हमारा जॉइंट म्यूचुअली हो गया। अब वो तो जो पीआईसीटी था तो होने को कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये वो भी आप ही नहीं शुरू किया, आपके वालिद वगैरह लोग। वो फिर हम सोल्ड ऑफ, वो किसी और की जिम्मेदारी थी, वो गवर्नमेंट ने वापस लिया
और गवर्नमेंट ने किसी को दे दिया बगैर एडवर्टाइजमेंट के, तो वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, वो कुछ भी करे। तो कंसेशन, हमारा विजन जो है वो 30 इयर्स प्लस 30 इयर्स का है। हमने इन्वेस्ट जो किया है, हम लोग अपना पैसा लगाया है, वो 30 इयर्स चलाने का, एंड देन रिन्यूएबल फॉर अनदर 30 इयर्स। तो हमारा विजन जो है स्पॉन्सर्स का वो 60 इयर्स। अभी कितना टाइम रहता है आपको? हमारे 20 साल रहते हैं। 2045-46 के अंदर कंसेशन खत्म होगा। इस वक्त हम 25-26 में बैठे हैं। तो 10 साल हो चुके हैं। 20 साल हो चुके हैं। अच्छा सर, ये जो आग लगी थी इसकी क्या वजह थी और आपको क्या इंश्योरेंस मिला है? सर इंश्योरेंस कवर मिला है नहीं मिला? के क्लाइंट्स जो हैं दे हैव शिफ्टेड टू टैंजानियन कोड। टैंजानियन कोड हमें जो लगा उसकी बहुत वॉलेटाइल लगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ आग लगी। एंड कोयला डालते ही वो आग लग जी, कोयले से कन्वेयर बेल्ट के ऊपर डाल के उसके आइडल्स में वो फ्रिक्शन से आग लगी। एंड वी कंट्रोल दैट। फिर हमने खुद ही अपने रिसोर्सेज से उसको क्या ये पहले आपको इल्म नहीं था इस चीज का? नहीं, देखें, ये कभी वॉलेटाइल कोल आ जाता है, लिग्नाइट कोल भी, इसका नेचर भी इसी तरह होता है। हमारे 7-8 किलोमीटर की कन्वेयर बेल्ट्स हैं, तो उसमें हमें ये चैलेंज आता है। हम मॉनिटर करते रहते हैं, स्प्रे करते रहते हैं, कभी पानी का, कभी कभी कोयले में खुद कंबशन होने लगता है, उसमें से धुआं निकलने लगता है, फ्यूल है वो बर्न होता है। वो तो जाहिर है जब जी इग्निशन होगा तो जी जी फ्रिक्शन बिल्कुल से। बिल्कुल। तो खैर हमने अपने आप को कुछ बेहतर किया, कुछ सिस्टम और बेहतर किए, लेकिन ये चैलेंज है, ये रिस्क है कोयले की हैंडलिंग। इसलिए तो अच्छा सर उसको एक इंश्योर्ड होता है। इंश्योरेंस हमने क्लेम डाला हुआ है। कितना सर 1 साल तो हो गया सर, जी, हो गया। 1 साल हो जाएगा। हो जाएगा। तो कितना नुकसान आपने estimate किया? सो इसमें बताएं आप बिकॉज हमने देखिए अभी इस वक्त जो हमारा नुकसान है, कुछ नुकसान की जो इनविजिबिलिटी है, वो भी हमारी बातचीत चल रही है। तकरीबन $2.5 मिलियन का कुछ खर्चा हुआ हमारा। एक्चुअल $2.5 मिलियन। उसकी इनविजिबिलिटी हो रही है। उसके अलावा भी कुछ चीजें जो कि हमने इंश्योरेंस वाले से ही करी है। तो इंशाल्लाह जो ये हमारा क्वार्टर है, इसके अंदर एक जो पार्शियल इनविजिबिलिटी हुई है, उसके नंबर्स आपको आ जाएंगे हमारे नजर कि वो कितनी हुई है। और उसमें वी आर वेरी होपफुल। हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो चुकी हैं इंश्योरेंस वालों, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी साल में हमारे पास जो उसकी इंश्योरेंस प्रोसीड्स है वो आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इंश्योरेंस के बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं। तो कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी डैमेज से रिलेटेड है, उसकी विजिबिलिटी पार्शियल हो गई है। कुछ और चीजें हैं जिसको हम अभी देख रहे हैं। तो रेस्ट एश्योर्ड कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज जो नुकसान पिछले का हुआ उसका भी हमें अजाला इस साल में मिल जाएगा। कुछ पेमेंट आई तो नहीं? थोड़ी सी अभी आई है 2-3 दिन पहले, वो फाइनलाइज हो गई। सर लास्ट ईयर जो एक्सपेंसेस बढ़े, लॉस हुआ, क्या उसमें एक्सपेंसेस का भी जी शेयर था? बिल्कुल ऐसे ही है। बिकॉज आपके जो ऑडिटर्स होते हैं वो आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप इंश्योरेंस एसेट्स बुक करें जब तक कि आपके पास विजिबिलिटी नहीं आती। तो आपको जितना भी खर्चा करते हैं उस खर्चे को आपको अपने फेयर में लेना पड़ता है। इसी वजह से जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ी थी, क्योंकि वो सारे एक्सपेंसेस जितने हमने रेस्टोरेशन पे किए। अब देखिए सिल्वर लाइनिंग क्या है? सिल्वर लाइनिंग ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह व्हेनेवर वी टॉक टू इंश्योरेंस एजेंट्स या किसके साथ, वो अप्रेज करते हैं इस बात को कि विद इन 25 डेज अल्लाह के हुक्म से हमने टर्मिनल को वापस से चला। विद इन 25 डेज हम खाली नहीं बैठे, हमने ऑल्टरनेट रूट्स पे काम किया। तो दीज आर द थिंग्स जो कि सिल्वर लाइनिंग है फॉर योर कंपनी कि किस तरह से आपकी मैनेजमेंट ने उस क्राइसिस वाले टाइम पे इंश्योर किया कि आपकी रिस्टोरेशन का काम भी साथ साथ चले, प्लस क्लाइंट्स को किस तरह से सर्विस किया जाए कि कंपनी बंद नहीं हुई। अच्छा सर, 35% जो रेवेन्यू होता है वो टोटल को ले जाता है पोर्ट का, उसके बाद जो बचता है उसमें एक्सपेंसेस काटने पड़ते हैं, सब होता है। अब सर एक नया स्टेक होल्डर आ गया है रिपोर्ट, जो $150 मिलियन जो इन्वेस्ट करे, उसके साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो? तो ये तो कमर्शियल नहीं, टर्म्स हैं, कमर्शियल तो है वो, डिस्क्लोज तो है, लेकिन सर एक नया एक स्टेक होल्डर नया आ गया, जाहिर है वो भी अपनी इन्वेस्ट को वो भी करेंगे। अभी कुछ चीजें कमर्शियली के साथ चल रही है और इस वक्त हम क्योंकि इसमें गवर्नमेंट और बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो भी होगा इंशाल्लाह कंपनी के लिए बेहतर होगा।
हमारी इंशाल्लाह ऐसा नहीं है कि कंपनी को पूछना है, कंपनी को बॉटम लाइन पे अच्छी चीजें मिलेगी इंशाल्लाह, हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नहीं सही है सर, सही है। करेंगे तो वो आपको नंबर्स में खुद नजर आना चाहिए। पाकिस्तान केबल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री में गए थे तो उनके साथ भी उन्होंने कुछ किया है, तो उन्होंने यही बात कही थी हमारी मीटिंग में कि ये रिकॉर्डेड वाले चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें यानी कि इस तरह ना शो की जाए कि हमारे जो है इंटरेस्ट खराब बढ़ाएंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि दूसरों को मौका दें। जी जी मौका दे जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। How do you rate the reasons 10 million tons in 2020 about 50-60% of the capacity और आगे आप पहले बात को रेट करके बता दीजिए रीजंस, सेकेंडली आगे आपको सोचने के लिए 77 countries So it's all dependent on the economy and what seaborne coal the clients are importing, right? So we are just the handlers at the port. So at that time, if you would look, the cement production would have been much better, high numbers in the country, for which the raw material that they used to burn is coal. So their imports of seaborne coal goes up when cement production in the country goes up, and that helps us. The situation with the Afghan border also helps us indirectly, because if a lot of कोयला comes from the Afghan border and unofficially बड़े channel से आता है, और तो वो भी अगर border बंद हो, that helps the seaborne coal in to professional channels को आता है, which is us. We handle that. So that external factors purely help in improving the volumes. और इकोनॉमी जिस तरह बेहतर हो रही है, और वो सीवियर शॉक उस वक्त आया जब गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ही बंद कर दी थी एलसीज, अगर आपको याद है, बंद कर वो सीवियर शॉक हमें आया था, बिकॉज हम एक ही कोल की कमोडिटी पे चल रहे हैं, तो वही जब एलसी भी बंद हो गई तो वो बड़ा सीवियर शॉक हमें आया। लास्ट ईयर भी हमें काफी कॉन्ट्रैक्शन हुआ वॉल्यूम्स में, बट अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट क्वार्टर एज आई मेंशन 1.8 million tons हमने handle किया in 3 months as compared to 4.6 million tons in 12 months of the last financial. So we are going back to, I hope, between 6 to 7 million tons per annum. If the economy remains well, if the imports are allowed, and country macroeconomics seems to be on the right track, so we hope to benefit from that. And coal prices भी globally कम हो गई हैं, तो the seaborne कोयला is very good quality, what our clients prefer, तो international prices भी कम हुई हैं, that helps them. More posing any challenges? जी, it does pose a challenge definitely, although it's very lower quality lignite coal, but it poses a challenge in the sense that हमारे neighbor हैं लकी पावर हैं जो अपना lignite coal import करते हैं और वो PIBT उसको handle करता है, and they are shifting to third coal. And I believe third coal is going in the coal mix of other power plants as well. So yes, that would reduce the volumes of seaborne imported coal. बीच में सर ऐसी बात भी आई थी ना कि आप जो है ना लोकल वो बाहर से इम्पोर्ट नहीं करें और लोकल जो है ना उसको जी, इसका क्या आप देखिए, ये एक ट्रेंड है, बिल्कुल गवर्नमेंट का फोकस भी ये है कि थर्ड कोल को चलाएं और लोकल कोल के मिक्स में ये आए, और ये So we have a question for online. सर जो हमारा जो टर्मिनल है इससे जो है ना रेलवे ने कोई कनेक्ट किया है ताकि जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन हो सके। हम तो ये सुन रहे थे कि जो है ना ये लाइन जो है वो बनने वाली है, और नहीं, देखिए रेलवे का कनेक्शन जो है मेन लाइन आती है पोर्ट कासिम में, और वहीं से ट्रक होके पीआईबी से कनेक्ट होती है, कासिम की उधर आती है मेन रेलवे लाइन, तो ट्रक होके आता है पीआईबी आता है, दैट इज द कनेक्शन, बट देयर इज नो रेलवे लाइन कनेक्ट। जी मिस्टर आदिल, ऑनलाइन अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? जी। अच्छा सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन है। एक बताएंगे आपके, अगर हम वेबसाइट के ऊपर जाएं पोर्ट कास्टिंग अथॉरिटी की, तो वहाँ पे अगर हम सर्च करें डीलिंग शिपिंग कार्गो की जो रिपोर्ट होती है, तो उसके अंदर आपके नाम के साथ ना लिखा हुआ होता है कि सोयाबीन सीड्स की आप इंपोर्ट करते हैं। जैसे लेट्स से 29 अक्टूबर को अल्पाइन मैरीन ने ऑलमोस्ट 58,000 मेट्रिक टन
सोयाबीन जो सीड्स थे वो इंपोर्ट किए थे, तो ये बताएंगे ये क्या होता है? तो इसमें ये हुआ था अभी ये 1-2 साल पहले अच्छी डेवलपमेंट हुई थी कि इसमें जब रश होता है पॉडकास्टिंग पे क्यों लगा हुआ होता है ऑफ दीज फूड एंड ग्रेन कमोडिटी इंपोर्ट वेसल्स का, तो पॉडकास्टिंग देखें बर्ड्स, इट्स अ बीओटी प्रोजेक्ट, बर्ड्स बिलोंग टू द पोर्ट अथॉरिटी। तो पोर्ट का जो ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान के पोर्ट्स में कंजेशन नहीं हो और वेटिंग हो, ठीक है, किसी भी बंद किया तो ये पोर्ट अलाउ करता है कि वेसल वेट कर रहा हो, प्लांट इंस्पेक्शन अथॉरिटी हमारी क्या है जो आके वो इमिग्रेशन करती है, इंस्पेक्ट करती है, तो उसको वो आके पीआईबीटी पे बर्थ करते हैं फॉर अ डे और 2 and they inspect the commodities. We don't handle that, but we get some berthing charges from there. So वो कंपनी के लिए अच्छा है, और पोर्ट का we appreciate पोर्ट अथॉरिटी का विजन है कि जी वो कंजेशन क्यों अगर हो जाती है तो वो मिटिगेट हो जाती है, पीआईबीटी पे वो उसका प्लांट इंस्पेक्शन अथॉरिटी आके चेक कर लेते हैं कार्गो, तो उनके 2-3 दिन डैमेज के बच जाते हैं। So it's a win-win for everyone, for the traders, but we don't handle that commodity. We're not allowed to handle that food and grain. आपको सर किसके चार्जेस मिलते हैं? चार्जेस Birthday, जी? सर आप स्टोर करते हैं, सिर्फ उसको हैंडल नहीं करते ना? नहीं, और handle नहीं करते, सिर्फ वेसल बर्थ पे रहता है और इंस्पेक्शन उसकी हो जाती है आपकी। ओके, और चार्जेस क्या चार्ज करते हैं उनके ऊपर, मतलब वही होती है $7.8 पर टन? नहीं, नॉट एट ऑल, वो तो हैंडलिंग चार्ज है। अच्छा, ये नॉर्मल से होते हैं बर्थ पे, बर्थ स्मार्ट। अच्छा एक और क्वेश्चन है, आप की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वहां पे उसकी वो फ्री होती है कुछ टाइम के लिए, फिर चार्जेस चार्ज करते हैं, या वैसे ओवरऑल चार्जेस होते हैं उसके? किस चीज से रिलेटेड पूछ रहे हैं आप? देखिए जो सोयाबीन वाली चीज है, ये जहाज सिर्फ नहीं, कोल की बात कर रहा हूँ, कोल मतलब कोल अनलोड हुआ है, वो चार्ज स्टोरेज मतलब स्टोर करेंगे उसको जब, तो चार्जेस पे करेंगे या कुछ टाइम तक फ्री होते हैं storage? होते हैं, जी, we give some time free to clients, अभी 5 days free हम करते हैं जिसमें clients उठा लेते हैं, and then we have contracts with clients. कुछ clients हैं और traders हैं जो long term कोयला रखते हैं PIB, तो उससे हमें फायदा होता है स्टोरेज चार्ज का। तो उसे स्टोरेज में अगर कोई हादसा हो जाए या कोई जी बिल्कुल, ये होता है उसको उसके Yes, sir. Can you hear me? जी। Sir, this is Apil Moise from Maple Leaf Capital. Sir, मेरा question है regarding the coal volume. Considering अगर हम backtrack करें ये numbers को जुलाई to अक्टूबर के, तो around 2.2-2.3 million टन बनता है, और इसको अगर हम extrapolate करें and including the November number as well, considering वो आ चुका है, तो ये around 7 million टन बनता है। तो हम यही expect करें कि इस financial year में हम 7 million टन very hopefully कर लेंगे। So that we have the capability and we look forward to handling those volumes. Again, as I said, it all depends on the external factors because हम importer तो नहीं है, तो ये अगर इंशाल्लाह मैक्रो इकोनॉमिक सही चलती रही, इकोनॉमी आपकी बेहतर रास्ते पे चलती रही और लोग सीमेंट फैक्ट्रीज की आउटपुट हेल्दी रही, तो ये इंपोर्ट्स वी होप टू कंटिन्यू। सर वो तो वी आर वेरी होपफुल कि ऐसा ही रहेगा, तो 7 मिलियन टन इज आवर बॉल पार्क नंबर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी यासीन साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, am I audible? जी सर एक चीज जरा मतलब पूछनी थी कि रिसेंट जो भी क्वार्टर की आपकी रिपोर्ट आई उसमें अकाउंट पेबल जो है वो तकरीबन 6 अरब के हैं, और उसमें से कुछ 4 अरब जो है वो रॉयल्टी पेमेंट है टू पॉडकास्टिंग। उस पे क्या अपडेट है, मतलब वो आपने पे करनी ही नहीं करनी, क्योंकि वो 2 सालों में तकरीबन डबल हो गई है, तो आप ये किस तरह मतलब पे ऑफ करेंगे लायबिलिटीज जो आपकी हैं? जी बिल्कुल, ये लाइक बहुत बढ़ गई हमारी, हमें पॉडकास्टिंग पे करनी है। लास्ट ईयर वॉल्यूम्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट की थी, सो इसमें हमारे ताखीर हुई है इन पेइंग पॉडकास्टिंग बिकॉज वी हैड सच अ कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम्स। 40% हमारा रेवेन्यू गिरा था लास्ट फाइनेंशियल ईयर। सो यस, ये पेबल बढ़ गया टू पॉडकास्टिंग, दैट वी हैव टू पे। वी आर होपिंग दैट वी पे ऑफ द एंटायर
foreign currency loan by June next year, inshallah. तो हमारी capacity हो जाएगी to again get some local loan and then pay off the royalty that has to be paid forecast. सर मतलब ये कि ये भी फिलहाल जो मतलब यही रहेगी ना, मतलब इस साल तो जो पेमेंट्स है रॉयल्टी की वो आप यही रखेंगे तकरीबन 4 अरब पे, मतलब ये बढ़ी जाएगी ऑब्वियसली। ये इसी रेंज में बिटवीन 4.5 के अंदर रहेगी, बिकॉज आपके पास जो कैश फ्लोज की रिक्वायरमेंट होती है वो जस्ट इन टाइम होती है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज जून 30, 26 हमारे पास एक तो कैपेसिटी आ जाएगी, फॉरेन लोन पे ऑफ हो जाएगा, यू कैन यूज दैट कैश फॉर पेइंग ऑफ द रोयल्टीज। प्लस ये कि हम फर्दर डेट लेके वन टाइम भी इसको खत्म कर सकते हैं। सो वो इट्स इन द प्लान, द पाइपलाइन, बट वी हैव टू वेट अ फ्यू मंथ्स टू गेट थ्रू दिस थिंग। सर एक दूसरा सवाल ये था कि जो आपने मेंशन किया है कि एक्सपोर्ट करेंगे आप लोग, जो भी रिकॉर्डिंग की जो है चीजें, उस पे क्या प्राइसिंग स्ट्रक्चर होगा, कुछ बता सकते हैं? That is a commercial understanding. We are not going to disclose that, but it will be, inshallah ta'ala, better rates than the whole. That much we can say in confidence. She's materialized, wholly nahi hai, but it's a material event. We have informed you. The agreements still need to be signed, and the construction still needs to happen. So we are hopeful that in 3 years' time, that milestone is completed. जिसके कैश फ्लोज आएंगे वो आप समझ लीजिए 2028-29 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। So हमारे पास कुछ और भी सवालात हैं वकास नरी साहब से। When is the financial close for recording? So that's their lookout. We understand they've closed their lenders agreements, and we need to close our agreements with them and the port authorities, and we are hopeful that inshallah in this calendar year, within 2 months, that should happen. By at least by 30th June next year, that thing should be finalized and construction started. This is what we are hoping, inshallah. और ऊपर जो आपका सवाल है अब्दुल रहमान अब्दुल राफे का अफगान बॉर्डर क्लोजर का, जी बिल्कुल अफगान बॉर्डर क्लोजर होता है, सो टर्मिनल यूटिलाइजेशन बढ़ती है। देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद दैट बिकॉज़ क्लाइंट्स इंपोर्ट seaborne coal when they cannot get the coal from अफगान बॉर्डर। Subsequently, उसी के अफगान बॉर्डर पे अफगान बॉर्डर ईयरपोर्ट्स would we see a volume drop? I think so, because अफगान कोल आता है और ये क्लाइंट्स जो हैं वो जो नॉर्दर्न पाकिस्तान में है उनके लिए कॉस्ट कम होती है rather than seaborne coal जो फोरकास्टिंग पे आता है और फिर ट्रकों पे जाता है या रेलवे से जाता है all the way 1,000 kilometers. So I think so, yes, definitely थोड़ा सी कोयला डाइवर्ट होगा। So Abdul Rafi from Topline, do you see any opportunity for PIBT to handle diverted cement export cargo given the current bottlenecks? That's a very good question. Yes, answer is yes to that, and we are hopeful. We've been marketing for many years to get our export system running, and we are hopeful. We are hopeful, inshallah ta'ala, that we try and handle that cement export cargo. As we know, royalty is a big challenge, which is the biggest cost to the exporters. तो हमारी रॉयल्टी ज्यादा है, कराची पोर्ट में जो कंसेशन हैंड ओवर कर दिया उसमें भी रॉयल्टी और कम कर दी है गवर्नमेंट ने। So that challenge remains, but we are hopeful कि इतनी capacity cement export lose की आ रही है that we should be able to capture some. So the next Abdul Wahab साहब से वो भी अफगान बॉर्डर पे which is already yes. उसके सोयाबीन वाला भी वो भी आदिल का हो गया ECC decision का Sama Habib, AKD Securities. Given the ECC decision to defer the proposal, can you give an idea of how it has affected your timelines in commencing the recording project? And what are your plans for shaping the revised framework and any capex plans that depend on this? So we answered that the capex we expect RDMC to do, it's about $150 million around that, inshallah ta'ala.
And we've given the timeline 2028, 2029. If all the agreements are signed and all the permissions are there. And it depends obviously on how the liquidate project shapes itself. What charges comes in ancillary charges you charge from the coal importers? So we charge storage from the coal importers and some trucking charges. म्यूट कर दीजिएगा सर। चलिए और सवाल का आप बताएं। आपको कुछ सर ये एक जो आपका रॉयल्टी बाकी है जो कि तो वो इसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है? जी बिल्कुल देना होता है, बड़ा सही। जैसे कि जिस क्लिनिक आउटस्टैंडिंग होता है उस क्लिनिक का जो बेस होगा रेट होता है स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट हम बता रहे हैं कि हम वन टाइम में पे कर देंगे। वो अगर हमारे बैंकों के लोन पूरे हो जाए जो बाहर वाले लोन है IFC उसके बाद व्हाट वी कैन डू इज के IFC ऑफिट की जो लोन होता है वो तकरीबन 1.25 से 1.5 रुपए हर 6 महीने में आपको निकालो, तो 1.25 से 1.5 रुपए की तो कैपेसिटी है आपके पास पे करने की। तो हम मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, ब्रिज लोन, डायरेक्ट और कासिम के साथ बात करके तो उस वक्त के हिसाब से बेहतरीन ऑप्शन होगा वो हम मैनेज कर सकते। सर लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी जून फॉरेन नोट्स तो ये नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स में आएगी या उससे नेक्स्ट ईयर लास्ट जो इसी साल का है, ये 25-26 हमारा चल रहा है। तो अभी जो 15 दिसंबर को एक इंस्टॉलमेंट पे 15 दिसंबर और फिर दूसरी 15 जून को इंशाल्लाह 30 जून के अकाउंट्स में वो नहीं हो जाएगा, फिर लोकल रह जाएगा ना। लोकल भी 2 साल और है बस। ऑल इज वेल एंड इज वेल। डिविडेंड कब आएगा ये बताया, क्योंकि 14 तारीख वो जो उन्होंने आखिरी सबसे पहले सवाल किया, मैं आखिर में सवाल कर रहा हूँ कि कब जो है ना हमें डिविडेंड मिलेगा। आप ये देखिए मैं आपको मोटा कंपनी तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए जनरेट करती है आज की तारीख में। अगर हम 6.5 मिलियन टन हैंडल करें तो कैश जनरेशन जो है वो तकरीबन 4.5 अरब रुपए जो ये बेटा आप निकाल मेरी नेट पेमेंट जो है वही 4.5 अरब रुपए। तो इस वक्त जो कैश जनरेट हो रहा है वो बैंकों को दिलाई कर रहे हैं और इतना भी कैश नहीं है जो डिविडेंड देने के लिए जिस पॉडकास्टिंग की रॉयल्टी भी आपको नजर आ रही है। तो क्या हुआ कि जब मैंने कहा 6.5 मिलियन टन हैंडल करते हैं तो आप 4-4.5 अरब रुपए फ्री कैश फ्लो करते हैं आफ्टर PQ की रॉयल्टी निकालते हैं। बट अगर आप 4 मिलियन टन करेंगे तो इसका मतलब ये है यू आर शॉर्ट ऑफ अराउंड 2.5 billion rupees. So the royalty payment which is payable as of last year और अभी के अंदर तकरीबन 2 रुपए का फर्क, 2 रुपए का यही फर्क है कि आपने 2 मिलियन टन वॉल्यूम कम किया। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं बैंकों को पैसे पहले देने अदरवाइज डिफॉल्ट हो जाता है, मुझे पॉडकास्टिंग को देने बिकॉज वो हैवी पेनल्टीज ले रहे हैं। ये जो 1-2 साल है जिसके अंदर आपको बड़े तरीके से मनूवर करना है चीजों के अंदर और इंशाअल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम तरीके से जा रहे हैं। Once it is done, तो आप देखिए PICT, अगर आप PICT की शेयर होल्डर आपको याद होगा PICT भी कितने साल के बाद जाकर डिविडेंड देना शुरू किया। 2008 में जाके कैश डिविडेंड दिया था, उससे पहले वो बोनस दिया करते थे, उस जमाने की बात, ठीक है। और उसके बाद जब लोन्स खत्म हुए तो PICT का डिविडेंड आपके सामने। तो जितना जो BOT प्रोजेक्ट के अंदर होता है कि मैनेजमेंट पर डिसाइड करती है कि भाई do we have to invest within the company for another opportunity or revenue, जैसे PICT के जमाने में PIBT का ऑप्शन आया था तो PIBT में इन्वेस्ट किया। मैनेजमेंट विल लुक इनटू दैट। तो कुछ हमारे पास ऑनलाइन और क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द पेनल्टी ऑन आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज टू पॉडकास्टिंग? बेस रेट जो होता है जिस टाइम पे वो अक्रू होती है वो स्टेट बैंक रेट से होता है। The volumes shown in the presentation referred only to coal. However, there has been an increase in clinker export volumes, which are not reflected in the presentation. Did not handle clinker exports. Foreign debt retirement का जवाब दे दिया है, ठीक है ना। और penalty outstanding forecasting का दे दिया जवाब। Mentioned during the presentation approximately $150 million investment
will be done by Liquidate. Will this dilute current shareholding? No, because Liquidate will pick up the investment for people not. तो इसमें हम कोई 10-11 मिलियन डॉलर हम लोग जी वो अभी भी थोड़ा सा फ्लूइड है, टोटल इतना ही होगा, उसमें से बहुत थोड़ा सा पोर्शन है। Thank you, everyone. बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन किया। थैंक यू सर, थैंक यू। ये किताब मुझे भी दे सर एक। सर 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 I need one book. मुझे यार नहीं ये इसका क्या